Yes. So, good morning to all of you. Yesterday we had a brief introduction about LLP. There is a very important principle when you are studying law, which you will be studying in the next year again. In fact, in the next year, there is going to be a short note about the same. That is, whenever either you are studying the law or you are interpreting the law. I repeat, whenever you are studying the law or when you are interpreting the law, then the most important principle which you should bear in mind is called as principle of mischief. What is the meaning of principle of mischief? Mischief means there is some mistake which is happening, or there is some situation which is getting exploited by people, and law wants to set the course right. Law wants to plug the loophole. Law wants to create a new way for all the people to go from that particular situation without getting stuck up into some or other type of mischief created by people because there is some loophole which is already available. So law wants to reduce the curve of that घाट section. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक्सीडेंट होता है बार बार. फिर कानून का मतलब क्या है? कानून का बेसिक मकसद क्या है? जहां पे घाट सेक्शन है, शार्प अलग अलग टर्न्स है, वहां पे जितना हो सके उतना उसका शार्पनेस कम कर देने का, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम हो जाए. So some mischief is happening which the law wants to take care of properly. So if you want to understand law or if you want to interpret the given law, then you should always try to understand what was the mischief which the law sought to rectify. तो कल मैंने तुमको ऑलरेडी मिस्चिफ बता दिया था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था तुमको बता दिया था. पहले प्रॉब्लम कब आया? WTO चालू हो गया और गैट चालू हो गया. गैट का मतलब क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. It is an agreement which is a bilateral agreement की which is a multilateral agreement. Multilateral agreement. Multilateral agreement का मतलब क्या है? You are not required to have separate bargaining with each and every country. All those countries which are signatory to the main agreement, in that case, they are assumed to be agreeing to all the different points. तो ऐसा जो main agreement रहता है, उसको डिजाइन करते वक्त बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि all the countries are going to raise their points. Their lawmakers are going to specify कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया तो आपके कंट्री को फायदा, बट हमारे कंट्री को नुकसान है. तो भैया हमारे नुकसान का आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. So it takes time to get consensus among all the different countries. WTO and GATT work a lot for the purpose of ensuring that ultimately the GATT will be signed by all the different countries. But उसके बाद में क्या हो गया? After signing of GATT, multinational companies found that it is now easy for them to set up their businesses all over the world in any country whichever they want, if that country is signatory to WTO or member of WTO or signatory to GATT. But then there are difficulties which are going to happen. A particular country may specify that ठीक है, हम लोग GATT के ऊपर ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी कुछ रहेगा, हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो भी कुछ रहेगा, हमारा टैक्सेशन लॉस जो रहेगा, वो सारा का सारा हम लोग दूसरे कंट्री का अडॉप्ट करने वाले. ऐसा कुछ है नहीं. Merely because we are signatory to GATT, merely because we are signatory to WTO, sorry, member of WTO, does not mean we are going to leave our right of passing our own laws which are going to govern our land. In that case, the Income Tax Act of India may be different as that of Income Tax Act of Pakistan. The treatment of companies under Income Tax of India may be totally different as compared to Income Tax Act of Pakistan or maybe that of Bangladesh. So although they are actually speaking part of the same subcontinent, still different countries may have different income tax laws. They may have different labor laws. They may have different auditing standards. They may have different accounting standards. They are allowing this particular thing कि मल्टीनेशनल कंपनी को हमारे कंट्री में आके काम करने का काम कर सकते. उसका आपको फिर से बार आपका गवर्नमेंट हमारा गवर्नमेंट मिलके होगा ये करने का वो करने का, वो सब झंझट हमने कंसीडर किया हुआ. बट डज नॉट मीन कि आपका कंपनी यहाँ पे आएगा तो वो अपने ओरिजिनल कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए. यहाँ पे काम करने का तो हमारे कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे कंट्री में चालू करते वक्त, काम चालू करते वक्त आपको ज्यादा प्रेशर्स का डिफिकल्टी नहीं है. Many things are already cleared off. Many hurdles are already removed. Many difficulties are already taken care of. तो आपका अपना बिजनेस यहाँ पे फटाफट से सेटअप करने के लिए काम इजी होने वाला है. बट इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आपने कुछ भी किया तो भी चलेगा. फिर हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करना पड़ेगा. इट मे बी अबाउट एयर पोल्यूशन,
It may be about water pollution. It may be about noise pollution. It may be about maybe workers treatment. It may be about workers compensation. It may be about workers retirement. वो सब जो रूल्स रहेंगे वो आपको फॉलो करने ही पड़े. फैक्ट्री में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे वर्कर्स के लिए वगैरह करके, वो सब चीजें हम लोग बताने वाले और आपको फॉलो करने पड़ेंगे. उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द डिफरेंट कंट्रीज शुड बी अलाइन्ड विद ईच अदर. हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं? आईएफआरएस इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएफआरएस? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. धीरे धीरे सारे के सारे कंट्रीज वहां पे जाने वाले. पर याद रखो आईएफआरएस इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब कंट्री ने अडॉप्ट किया. मेनी कंट्रीज में स्पेसिफाई ठीक है भाई आप आईएफआरएस के हिसाब से काम करने को बोल रहे हो, बट हमारा अभी का जो सिस्टम है, हमारा अभी का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग एक रात में फट से बदल नहीं सकते. देन एवरी कंट्री में पुट देयर ओन डेडलाइंस. दे मे क्रिएट देयर ओन टारगेट्स कि by so and so time we are going to at least adopt these many IFRS standards into our accounting standards. हम लोग IFRS को अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग IFRS के हिसाब से मॉडिफाई करवा के लेते हैं. सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वी आर नॉट सेइंग दैट ठीक है आप जो स्टैंडर्ड सेट करोगे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. आप स्टैंडर्ड सेट करो, आपका वो बायोलॉजी जैसा है, आपका वो मॉडल है, वो मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से हम लोग अपना अपना स्टैंडर्ड बना के लेंगे. बट हमारा अथॉरिटी जो है वो हमारे पास ही रहेगा. So it's obvious that auditing standards may change. It's obvious that taxation standards may change. Accounting standards may change. And in that case, a company which is working in a particular country will find that it is getting regulated by all these different laws. They may have to hire different experts. These experts, since they are experts, that means they are knowing their field in a perfect manner, but does not mean they are knowing all other fields in a perfect manner. तो in that case उनको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग एक्सपर्ट्स को काम करने को बुलाना पड़ेगा. फिर एक एक्सपर्ट इसके बाद से, एक एक्सपर्ट उसके बाद से, उनका सबका सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न रहेगा तो डिफिकल्टी आना चालू हो जाएगी. देयर विल बी डिफिकल्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. ये बोलेगा अरे मेरे पास भी डेटा दिया हुआ है तो जरा रुको, मेरा काम होने तक दूसरे को रुकना पड़ेगा. दूसरा बोलेगा अरे डिफिकल्टी हो जाएगा, मैं मेरा काम कब करूं? मेरे भी अलग अलग डेडलाइंस रहेगा, मेरा बाकी के क्लाइंट्स भी. तो मुझे ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि जहाँ पे एक ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आएगा और सब काम करके देगा. बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन रहेगा? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी वैसा मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी. मल्टीनेशनल कंसल्टेंसी, लेकिन याद रखो प्रोफेशनल काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? यू कैन नॉट बी अ कंपनी, यू हैव टू बी अ partnership, because professionals are required to render the services on their own. They are having the responsibility of saying that yes, I am vouching that this is correct, I am certifying that this is correct. तो सर्टिफिकेट देने वाला जो है वो पर्सन को उसका नॉलेज रहना चाहिए. It cannot be delegated to somebody else. There cannot be separation of ownership from management when it comes to professionals. It can be for business. A business can be done with the help of separation of ownership from management. Business can be done as a sole proprietary concern, can be done as a partnership firm, can also be done as a company. क्योंकि बिजनेस में देयर इज नो नीड ऑफ यू योरसेल्फ प्रोवाइडिंग सर्टेन थिंग्स. अगर सपोज रहेजा बिल्डर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठने के बाद रहेजा इधर कुछ तो कपड़ा वपड़ा बांध के यहाँ पे चालू करेगा सीमेंट में लगाने को और ईंट वगैरह रखने के लिए. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. लोड़ा बिल्डर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करेंगे, पंडित जावड़े कर रहेंगे, गोखले रहेंगे और क्या परस पे रहेंगे, तो सुबह से उठते गवेला वगैरह लेके चालू करते हैं. ऐसा कुछ होने वाला है नहीं. दैट्स अ बिजनेस. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? जितने डेयरी है, साढ़े डेयरी, इसका मतलब नहीं कि सुबह जाके वो गाय का दूध निकालने बैठेंगे और सब चीजें आप करने बैठेंगे. दैट्स नॉट द केस. सो बिजनेस है भैया. बिजनेस में देयर इज नो कंपल्सन दैट द पर्सन हु इज doing the business will have to do every activity which is involved in the business. But when it comes to profession, that is not allowed. When it comes to doctor, when it comes to engineers, when it comes to lawyers or chartered accountants, लॉयर मैक्सिमम क्या कर सकता है? अपने ऑफिस में असिस्टेंट रख सकता है, उनके पास से थोड़ा काम करवा के ले सकता है, बट बाद में जिम्मेदारी उसका खुद का रहने वाला है पूरा. उसको साइन खुद को करना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अगर लॉयर का तबीयत खराब रहेगा, क्या बोलेगा? आज मैं डेट एक्सटेंड करके लेगा, मेरा असिस्टेंट आके काम करके लेगा. ऐसा नहीं हो सकता है. कितना भी बड़ा लॉयर क्यों ना होने दो, फिर हरीश साहब रहने दो, कोई और रहने दो. He will have to be present personally for the purpose of appearing in the court. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो प्रोफेशनल्स को कंपनी बनाना अलाउड है नहीं, तो पार्टनरशिप भी करना पड़ेगा. और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है? पार्टनरशिप क्रिएट्स नंबर 1 म्यूचुअल एजेंसी एंड ड्यू टू व्हिच इट क्रिएट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी. Now I am a person who is having expertise in taxation but not having expertise in GST, or I am having expertise in taxation and GST but not having expertise in auditing, or not having expertise in accounting, or not having expertise maybe in labor laws. तो उधर मेरे पार्टनर ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसके से कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी ने फर्म के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, तो सभी पार्टनर्स को डिफिकल्टी सहन करनी पड़ी. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड वी डोंट वांट दैट टोटली. वी आर एनेबलिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज टू वर्क इफेक्टिवली. That does not mean that multinational companies are going to sue us and ultimately break us down. 1991 में एनरॉन नाम का कंपनी था, अगर पता रहेगा. पता है क्या किसी को? एनरॉन नाम का बड़ा कंपनी था, ENRON. घर जाने के बाद कोल्ड फ्यूजन नाम का जो यूट्यूब चैनल तुमको मैंने इससे पहले बोला था,
उसमें जाके ढूंढो एनरॉन का, उसने आधे घंटे का अच्छे से वीडियो दिया हुआ है कि एनरॉन के क्या क्या हुआ। आर्थर एंडरसन नाम का कंपनी था, उनका ऑडिटर से वो, और आर्थर एंडरसन एनरॉन का ऑडिटर से, और बाद में एनरॉन में बहुत सारा घपला हो गया, पूरा आर्थर एंडरसन कंपनी बंद करना पड़ा। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इतना बड़ा कंपनी होने का अगर अपना पार्टनरशिप हम अपने को बंद करना पड़ेगा, मल्टीनेशनल पार्टनरशिप, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। समझ सब कैसे बोल रहा हूँ? तो काम कैसे करने का? फिर देन वी डिसाइडेड दैट नो, वी विल हैव टू हैव, इफ यू आर ओपनिंग अप द वर्ल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, then we'll have to create a new beast, new creature, which is having a different type of feature as compared to the normal situation. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? थोड़ा घोड़ा है लेकिन ये उड़ भी सकता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Are you getting the point? ये शेर भी है लेकिन साथ में चीता भी है, भाग भी सकता है जोर जोर से। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा अपने को कुछ नया सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने नया गेम बना लिया। अभी इस गेम का नाम क्या रखेंगे हम लोग? LLP। इसके पहले कौन सा गेम खेल रहे थे हम लोग? पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप से ही आगे चल रहा है, लेकिन काम किसका करेगा? भी इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? LLP रखेंगे। सबसे बड़ा फीचर क्या रहेगा इसके अंदर? बहुत सारे बाकी के फीचर्स पार्टनरशिप जैसे ही रहेंगे। देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट यू विल फाइंड दैट द फोकस इज नॉट ऑन व्हाट शुड बी द म्यूचुअल रिलेशन एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज, वो सब चीजों का हमारा ज्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग अप फ्रॉम पार्टनरशिप। बट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट, इसमें काम कैसे किया जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा, कम्युनिकेशन करने के लिए किसके साथ बात किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई बोलेगा सर ये लॉ वाला एक्सपर्ट है और ये लेबर लॉ वाला एक्सपर्ट है, वो कंपनी लॉ वाला एक्सपर्ट है, ये टैक्स लॉ वाला एक्सपर्ट है, जीएसटी वाला एक्सपर्ट है, ठीक है भैया, अभी किसके साथ बात करूं? फिर बताओ ना पार्टनरशिप में, वो तो बता। और इसी टेक साइड वी आर कुड अगेन टॉक टू डिफरेंट पार्टनर सेपरेटली, और कैन बी स्पेसिफाइड वी आर गोइंग टू टॉक टू वन पर्सन एंड देन इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी। कुछ तो ऐसा एक सिस्टम बना के देना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आपका पार्टनरशिप के साथ डील करने का मतलब हमको हर एक पार्टनर के साथ अलग अलग सेपरेटली डील करने का, इसका कुछ मतलब नहीं। So we'll have to create a method of arranging the structure in a more systematic manner. So partnership act में मेरा बहुत सारा डिस्कशन कंसेप्चुअल डिस्कशन के ऊपर था कि कंसेप्ट क्या है, कैसा है करके। यहाँ पे कंसेप्चुअल डिस्कशन काफी कम है, यहाँ पे प्रोसीजरल डिस्कशन ज्यादा है। So this is relatively easy act. इसमें सिखाने के लिए कम है, समझने के लिए भी बहुत सारा कम है, याद रखने के लिए बहुत ज्यादा। समझ कैसे बोल रहा हूँ? पार्टनरशिप एक्ट में सिखाने के लिए बहुत ज्यादा है, समझने के लिए बहुत ज्यादा, डिस्कशन आ सकता है, डाउट्स आ सकता है, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे ज्यादा झंझट नहीं है, यहाँ पे अपने को ज्यादा बाहर करना पड़ सकता है, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, छोटा सा कानून है लेकिन सिलेबस में है और क्वेश्चन तो आने वाला है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर से आने वाले हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो नंबर ऑफ पेजेस यू कैन सी, पार्टनरशिप में कितने पेजेस थे, यहाँ पे कितने पेजेस है, वेरी फ्यू पेजेस आते हैं। कितना? 16-17 पेजेस आते हैं। तो 16-17 पेजेस में अपने को 2 क्वेश्चन आने वाला है, और उसके अंदर उसका उनका बहुत सारा डायग्राम रहेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पेजेस आर लेस। बहुत अच्छा कानून है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने सारे पेजेस है, एंड एवरी पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ इज हैविंग इट्स ओन स्पेशल सिचुएशन। सिर्फ फ्री कंसेंट पकड़ोगे तो उसके अंदर दुनिया भर का चीज आ जाता है, सिर्फ कैपेसिटी ऑफ पार्टी पकड़ोगे उसके अंदर दुनिया भर का चीज आ जाता है। वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का जितना नंबर ऑफ पेजेस रहेगा उतना एलएलपी का पेजेस है। देन यू कैन अंडरस्टैंड the way in which the syllabus is designed, or it is a small act basically. It is only for the purpose of creation of a new system, nothing more than that. चलो फटाफट से चालू करेंगे। अपने को आज कल परसों 3 दिन में पूरा करना है। अगर 16 पेजेस है मतलब एवरीडे अपना कम से कम 5 पेजेस होना चाहिए। ओके, shall we go ahead now? LLP क्या बोलता है LLP अपने को? इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप एंड रिलेशंस, उसके अंदर मीनिंग एंड कंसेप्ट क्या, एडवांटेजेस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने पड़ेंगे, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन कैसे करने का, एंड डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकदम ज्यादा मत चेंज करो, 26 और 20 में करो, नहीं 24 पर 24 पर या नहीं ఎంత परत पाठवा। चला चला स्टार्ट नाउ, एवरीबॉडी इज विद मी। इंट्रोडक्शन देखो क्या बोलता है। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 9th of January 2007 नोटिफाइड द LLP 2008। तो मैंने अपने को डेट दे के रखा है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डेट ऑन व्हिच LLP हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो 9th January 2007 को उन्होंने नोटिफाई किया, और नोटिफाई क्या किया कि LLP Act of 2008 is something which we are going to consider.
ओके, हमने इसको जन्म दिया हुआ है, ऐसा बोल के रखा। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट पास एलएलपी बिल ऑन 12th of December 2008। हम लोग 9 जनवरी को मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बोला ये हमारा एक एक्ट है, हम लोग डिस्कशन करने के लिए भेज रहे हैं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में वो पार्लियामेंट में चला गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और पास कब हुआ? 12th of December 2008, and the President of India has assented the bill on 7th of January 2009 and called the Limited Liability Partnership Act of 2008। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कानून बनाया कब? बना के पूरा हो गया ये लो कानून, ये बोला कब? 9th of January 2007। तो तभी बोल के रखा इस कानून का नाम क्या रखने वाले हम लोग? LLP 2008, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी कानून बनाया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिमेंबर अ मिनिस्ट्री कैन नॉट डायरेक्टली क्रिएट अ लॉ, लॉ विल बी क्रिएटेड बाय हु? बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? मिनिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग पार्ट। नहीं इकडे तर नाही दिसत एकदम नाही मॅडमचा फोन सो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दोनों लोग होते हैं, एक कौन होता है? गवर्निंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, और दूसरा कौन रहता है? अपोजिशन पार्टी। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दोनों लोग रहते हैं, दोनों डिस्कशन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर बोलो, कुछ भी बोलोगे तुम लोग, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द गवर्निंग पार्टी, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जब अपने मन में को अच्छा लगेगा वो डायरेक्टली रूल कर सके, ऐसा नहीं। इन डेमोक्रेसी वी डू नॉट से दैट रूलिंग पार्टी मींस उसके मन को जो अच्छा लगेगा करेगा, उसको पार्लियामेंट में आके डिस्कशन करना पड़ेगा। और अपोजिशन पार्टी उसमें अलग अलग ऑब्जेक्शन भी ले सकता है, कुछ सजेशंस भी कर सकता है, और उसको सबको इनकॉर्पोरेट करने के बाद में डिसाइड होता है कि लॉ कैसे पास किया जाएगा। तो दे हैव जस्ट नोटिफाइड द लॉ कि भाई ये लॉ है, डिस्कशन के लिए आप ले लो। इट इज एक्चुअली स्पीकिंग नॉट अ लॉ, इट इज कॉल्ड एज अ बिल। सबको समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? द बिल वंस पास देन इट बिकम्स एक्ट। तो ये बिल हो गया, फिर बाद में पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट में तो क्या 365 डेज चलता नहीं है, पार्लियामेंट वर्क्स ओनली थ्राइस इन अ ईयर, उसका 3 सेशंस रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? पहले कौन सा रहता है उनका? बजट सेशन, जो समर में रहता है, अभी फरवरी मार्च में हुआ। बाद में रहता है उनका मानसून सेशन, और बाद में रहता है उनका विंटर सेशन। जनरली 45 डेज का वाला सेशन रहता है। समझा मैं कैसे बोलता हूँ? 45 मतलब कितना हो गया? 135 डेज इन अ ईयर द पार्लियामेंट फंक्शंस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 365 में से 135 डेज के पार्लियामेंट फंक्शन होता है। बाकी के दिन वो क्या करता है? अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके वहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देते हैं, लोगों को मदद करते हैं और प्रॉब्लम को समझते रहते हैं, जिसकी वजह से इफ इट इज रिक्वायर्ड दे कैन पुट अ न्यू बिल इन द पार्लियामेंट और दे कैन रेज द क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट कि भैया आपने अलग अलग सिचुएशन पास करके रखा हुआ है, बट मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को मदद नहीं मिल रहा है, तो किसको कैसे सॉल्व करने का वगैरह। दैट इज व्हाट दे कैन डू। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो दिस इज ऑल द बेसिक सिस्टम। फिर पार्लियामेंट में जब वो चला गया, फिर डिस्कशन, फिर पार्लियामेंट में क्या एक ही बिल आएगा ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग डिस्कशन होता है। सो देन इट विल हैव टू बी डिसाइडेड इन एजेंडा on which particular date will be discussed, etc. But discussion जिस दिन बोला उस दिन पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है। It will be circulated among all the members. Then they will read that particular thing. They will try to find out what are their objections or what are their suggestions. फिर put forward किए जाएंगे। उसके बाद में फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। फिर पार्लियामेंट फिर से टेबल किया जाएगा और बाद में पार्लियामेंट बोलेगी ठीक है भाई हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है अभी। तो बेसिक कानून बनाने की जिम्मेदारी किसका? उस मिनिस्ट्री का है। But it is not called as an act at that time. It is basically called as a bill. And then it goes to the parliament. Then it gets discussed, it gets adjusted. Thereafter क्या होने वाला है? फिर वो पास हो जाएगा। पास होने के बाद उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्ट। बट पास हो गया इसका मतलब डायरेक्टली अभी तक पूरा हुआ नहीं। अभी किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जिस दिन उस पर साइन करेगा उस दिन वो इनैक्ट हो जाएगा। तो सब कैसे बोल रहा हूँ? So the president gave assent to the bill on 7th of January 2009. Remember, president generally gives assent. President generally never tells that नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा जाओ ऑफिस, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिंग पार्टी सबने डिस्कशन करने का तो उसके बाद आया। तो प्रेसिडेंट कैन नेवर रिजेक्ट। हाँ, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ लगता है कि इस कानून में कुछ बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अभी एलएलपी जैसे कानून में कुछ प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज इट इज अ बिजनेस वाला है, बट देयर कैन बी सम एक्ट्स व्हिच मे बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट which may reduce the freedom of the citizens of a country. In that case, the president has a right to tell the parliament कि भाई यार फिर से बार देख लो, एक बार डिस्कशन करें वापस। तो he will not reject it. He will just say that you will have to rethink about it. प्रेसिडेंट ने रीथिंक करने को बोला है तो तुम जनरली उसको वापस नहीं बोल सकते हाँ ठीक है थिंक किया चल ले लो, ऐसा नहीं होता। You are able to think about that particular thing. What is the reason why he said? जनरली उसको 3 बार ऐसा वापस भेजने का अधिकार है।
फिर से ऑफिस आए, फिर से जाओ, देखो, फिर से देखो, ऐसा करके सिचुएशन रहता है। बट अभी अपने को उतना जरूरत नहीं है। एलएलपी में तो प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया। कब हाँ बोल दिया? 7 जनवरी 2009। तो सर इसको बोलेंगे हम लोग एलएलपी एक्ट ऑफ 2009? नहीं, इसको क्या बोलने का? एलएलपी एक्ट ऑफ 2008। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट, एलएलपी एक्ट ऑफ 2008 is applicable to whole of India. This act has been enacted to make provisions for the formation and regulation of LLP and for the matters connected therewith or incidental thereto. तो ये एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को बनाने को मदद करना और बने हुए एलएलपी को रेगुलेट करने को मदद करना, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। और इसके से अगर कुछ नए नए मैटर्स आते गए तो वो सब अलग अलग मैटर्स को कवर करने के लिए एक्ट बनाया हुआ है, बेसिकली फॉर फॉर्मेशन एंड फॉर रेगुलेशन। एंड इंसिडेंटल मतलब क्या है? ऑब्वियसली डिसोल्यूशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? द एलएलपी एक्ट ऑफ 2008 हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। 81 सेक्शन्स आहे आणि 4 शेड्यूल्स आहे. जनरली शेड्यूल्स कशासाठी दिलेली असतात? शेड्यूल कसा होता है? सॉरी, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फिर पार्टनरशिप एक्ट में या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अब तो शेड्यूल्स नहीं। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं थे। शायद सर ने बोले कि नहीं बोलेंगे, मुझे पता नहीं है। उसमें शेड्यूल्स है। तो एक शेड्यूल तो तुमको मैंने ही बोला था, शेड्यूल्स याद है कि आपको सब? शेड्यूल्स आर नॉर्मली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सर्टेन फॉर्मेट्स और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच आर लाइक टेबल्स। जब ये एरिया में ऐसा लगा, वो एरिया में वैसा लगा, तो अलग अलग एरिया उनका डेफिनेशन कि गोवा दमन दीव में ऐसा ट्रीट करने का, उधर ऐसा ट्रीट करने का है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इनकम टैक्स एक्ट में तो बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सर्टेन रेट्स। शेड्यूल्स आर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सम स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एक्सेट्रा। उसके शेड्यूल्स यूज किए जाते हैं। जनरली कानून के दो टुकड़े रहते हैं, एक को बोलते हैं चैप्टर, एक को बोलते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आर जनरली लिस्ट्स और फॉर्मेट्स। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड चैप्टर्स आर लाइक कंपार्टमेंट्स। चैप्टर्स आर लाइक कंपार्टमेंट्स। अगर तुमको बोलूंगा कि यार पार्टनरशिप क्या है, तुम बोलोगे सर पार्टनरशिप एक चैप्टर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक चैप्टर है। तो उसके अंदर तुम्हारे अलग अलग टॉपिक्स है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक वाला टॉपिक है, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? कंसिडरेशन दूसरा वाला टॉपिक है। सो कंसिडरेशन ये भी नाम है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये भी नाम। तो आप जब कंसिडरेशन सीख रहे हो तभी भी आप क्या करते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही सीखते रहते हो। ऑफर एक्सेप्टेंस सीखते हो तो भी क्या करते रहते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही सीखते रहते हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टी सीखते रहते हो तभी भी क्या करते हो? इंडियन। जिस तरह से आप अपने क्लास के बारे में, अपने स्टडी मटेरियल के बारे में समझ सकते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एक पूरा चैप्टर है और उसके अंदर क्या अलग अलग टॉपिक्स है, और उस टॉपिक के अंदर फिर से क्या रह सकता है? सब टॉपिक रह सकता है। एग्जांपल फ्री कंसेंट के अंदर क्या है? फिर तुम्हारा कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब क्या हो गया तुम्हारा? अलग अलग सब टॉपिक्स हो गया। फिर सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक रह सकता है कि पहले फ्रॉड का मतलब क्या, फिर बाद में रेमेडीज ऑफ फ्रॉड क्या है, क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड अलग रहेगा। बाद में फिर मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, फिर बाद में उसका एक्सेप्शन कौन सा रहेगा, रेमेडीज कौन सा रहेगा, सेम इज इक्वल टू मिसरिप्रेजेंटेशन, सेम इज इक्वल टू कोercion, सेम। ये अलग मतलब हर एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर तुमको 2-3 पार्ट आ गया। पहला उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाद में उसके एक्सेप्शंस कौन सा है, और बाद में उसका रेमेडीज कौन सा है। क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये अपना जो स्टडी मटेरियल का स्ट्रक्चर है, टॉपिक का स्ट्रक्चर है, वैसे ही अपन लोग एक्ट में भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। सबसे पहले कौन है? चैप्टर। चैप्टर का सिर्फ एक खोखला नाम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम है बस, बाकी कुछ नहीं। क्या पढ़ रहा है तू? पूरा बुक पढ़ेगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहा है। कौन सी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहा है, इसको तो मतलब होता है। सो इट्स जस्ट अ नेम which tells you are talking about which type of concepts। फिर चैप्टर के अंदर क्या थे तुम्हारे? टॉपिक्स थे। टॉपिक के अंदर क्या थे तुम्हारे? सब टॉपिक्स थे। सब टॉपिक जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चैप्टर के अंदर आएंगे सेक्शंस, एवरी सेक्शन डील्स विथ वन पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? उसके अंदर क्या आएंगे? सब सेक्शंस, बाद में क्या आएंगे? क्लॉजेस, और बाद में क्या आएंगे? सब क्लॉजेस। ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी कानून का बना रहता है। नंबर 1 क्या रहेगा? ऊपर एक्ट, उसके अंदर क्या रहेगा? चैप्टर्स, और कौन? शेड्यूल। शेड्यूल्स के अंदर क्या रहेंगे? लिस्ट्स और फॉर्मेट्स, और चैप्टर के अंदर क्या रहेंगे? सेक्शंस। सेक्शंस के अंदर क्या रह सकता है? सबसेक्शन। सबसेक्शन के अंदर क्या रह सकता है? क्लॉजेस। क्लॉजेस के अंदर क्या रह सकता है? सब। मेरा बोलने का तरीका जरा ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोलता रहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। मैंने क्या बोला? एक्ट के अंदर क्या रहेगा? चैप्टर्स एंड शेड्यूल।
और बाद में मैंने क्या बोला, चैप्टर के अंदर क्या रहेंगे, सेक्शंस, क्या रह सकते हैं, ऐसा नहीं बोला मैंने, क्या रहेंगे, चैप्टर इज ऑलवेज सब डिवाइडेड इन सेक्शंस, सेक्शंस में हैव सब सेक्शन, चैप्टर है मतलब अंदर सेक्शन है, क्या समझ क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सेक्शन है मतलब अंदर सब सेक्शन रहेगा ही रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। देयर इज अ चांस दैट अ पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर कंसेप्ट कैन बी कवर्ड इन वन सिंगल सेक्शन, उसमें कुछ ज्यादा वैरायटी नहीं है, इन दैट केस यू मे हैव ओनली वन सेक्शन फॉर द सेम। देखिए कैसा अपना भी एलएलपी, तुम्हारा टेक्स्ट बुक देखो, तुमको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है, ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंदर तुमको 3 अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स क्या है, और बाद में तीसरा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन क्या है। बट एलएलपी के लिए सिर्फ एक ही नाम दिया है, एलएलबी, बस, उसके अंदर कुछ अलग अलग चीज बोल के नहीं रखा हुआ है, सीधा एक ही बोल के रखा है एलएलबी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सिमिलरली सम चैप्टर्स, सॉरी एवरी चैप्टर मस्ट हैव सेक्शन, but every section may not have subsection, it may have, may not have subsection. Similarly every subsection may not have clauses, it may have clauses, it may not have clauses, depends कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा तो उसके अंदर अलग अलग लेयर्स क्रिएट करता है, तो एक सिचुएशन के लिए एक सबसेक्शन, एक सिचुएशन के लिए एक सबसेक्शन, फिर उस सबसेक्शन के अंदर एक पार्ट के लिए क्लॉज। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो कानून को अगर देखने का तो मिठाई की दुकान के जैसा देखने का, बाहर से देखा है तो क्या है, मिठाई का दुकान। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अंदर जाएगा तो भी दिखेगा, अरे यहाँ पे क्या है, फरसान वाला आइटम रखा हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, मिल्क वाला आइटम रखा हुआ है, जिसमें साथ में रस रहता है कुछ ना कुछ, तो गुलाब जामुन रहेगा, रसगुल्ला रहेगा वगैरह, रसो एक साइड में रखे रखे। फिर दूसरा वाला मिल्क वाला आइटम से, लेकिन उसमें रहता है पेड़ा वाला रहेगा, बर्फी वर्फी रहेगा, और सबको अलग अलग तरीके से रखना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। फिर उसके अंदर भी क्या रहा है, बर्फी के अंदर भी 2 अलग टाइप का, अंजीर बर्फी, सादा बर्फी, ये वाला बर्फी, वो वाला बर्फी, तो डिपेंड्स। पेड़ा के अंदर फिर क्या, सादा वाला पेड़ा, मावा वाला पेड़ा, कंदी पेड़ा, ये वाला पेड़ा, वैसा ऐसा दुनिया भर का अलग चीजें करके बैठेगा। सो सेम इज कैसी है। और कुछ कुछ जगह पे क्या नहीं बाबा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही और कुछ है नहीं, इसके अंदर आपको सब पार्ट नहीं, रसगुल्ला बोलते रसगुल्ला, रसगुल्ला विद दिस एंड रसगुल्ला विद दैट नहीं, बस काम खत्म हो गया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। गुलाब जाम के अंदर सादा गुलाब जाम और काला गुलाब जाम और क्या सूखा वाला गुलाब जाम, दुनिया भर का अलग अलग चीजें क्रिएट हो जाएगा। दैट इज हाउ अ मिठाई का दुकान इज अरेंज्ड। सिमिलरली एनी एक्ट इज अरेंज्ड, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे अंदर क्या करने का, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज करते जाते। लेकिन सब क्लॉज के बाद में सब सब क्लॉज, सब क्लॉज, ऐसा कुछ करने का नहीं, मैक्सिमम इतना ही रहेगा, चैप्टर, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे दोस्तों बोलो। चलो ठीक। तो यहाँ पे याद रखने के 81 सेक्शंस है, 81 sections and 4 schedules are there. The first schedule deals with mutual rights and duties of the partners as well as limited liability partnership and its partners where there is absence of formal agreement with respect to them. तो जब पार्टनर्स के बीच में आपस में फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो इन दैट केस उनका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ये समझने के लिए किसके पास देखने का, फर्स्ट शेड्यूल के पास जाना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल? Whenever the formal agreement between the partners is not in existence, then to understand the rights and duties of partners, go to the first schedule. Next part, the second schedule deals with the conversion of firm into LLP. तो भैया हमारा एक existing partnership firm है जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमने कब बनाया था, 1980 में बनाया था, हमने कब बनाया था, 2000 में बनाया था, हमने कब बनाया था, 2004 में बनाया था, हमने कब बनाया था, 2007 में बनाया था। जब भी हमको ऑप्शन अवेलेबल नहीं था ना एलएलपी बनाने का, तो हमारा पार्टनरशिप बनके रेडी हो गया, काम चालू है। हमको मालूम है किसी अपने को डिफिकल्टी आ सकता है बाद में, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने काम चालू करने के लिए पार्टनरशिप यूज कर दिया था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन करके हो गया। अब जब एलएलपी का ऑप्शन मिल चुका है तो हम बोले अरे यार थोड़ा घाई कर दिया, थोड़ा रुकते तो अपने को एलएलपी चालू करने को मिल सकता था। अभी बाकी के लोग करेंगे तो उनको एलएलपी मिलेगा, लेकिन अपने को क्या रहेगा, पार्टनरशिप। तो एक ऑप्शन क्या है, पुराने वाले को डिसॉल्व करो और नया वाला बनाओ। पुराने वाले को डिसॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, सब जगह पे रजिस्ट्रेशन। क्या समझ सकें कैसे बोल रहा हूँ। और तब तक वो बीच का पीरियड के लिए ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, फिर वो ट्रांजेक्शन की जिम्मेदारी किस पर आएगा किस पर नहीं आएगा, सब झमेला क्रिएट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन को भी अपने को तकलीफ हो जाएगा। हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग? तो बोलते हैं नहीं ठीक है, हमको मालूम है कि हमने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है और आप लोग पुराने वाले हो, तो जैसा अपना सी इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम ओल्ड सिलेबस था, लेकिन बाद में हमने नया सिलेबस चालू किया। इफ यू वांट यू कैन स्विच टू न्यू सिलेबस। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? If you want to switch to new syllabus, same logic.
आपका एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है और आपको अभी लग रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म विच इज अंडर द 1932 वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, you don't want to continue under the same act, you want to come under the LLP act, then how to convert, that is told to you under schedule 2. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू LLP. पहले क्या था? सेकंड शेड्यूल इज फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू LLP, और अभी थर्ड शेड्यूल किसके लिए? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू LLP. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन ऑफ, ये तो समझ में आता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला जो पार्टनरशिप है उसको LLP में कन्वर्ट होने का है, तो उसका फायदा क्या हो सकता है अपने को सामने सामने मालूम है. बस अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल की जगह पे लिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल आ जाएगा, तो अच्छी बात है, लेट अस गो फॉर दैट. बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वैसे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी में था ही नहीं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा तो लिमिटेड लायबिलिटी में ही था, तो उसको तोड़ के फिर से बार LLP के पास जाने का क्या मकसद रह सकता है? कैन एनीबॉडी विजुअलाइज व्हाट इज द पर्पस? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ रहा है कि जिसको सॉल्व करने के लिए अपने को लगता है कि भैया क्या करेंगे, LLP में वापस चले जाएंगे? Rules and regulation committee, yes. Although LLP as a form was basically started for what? For enabling professionals to do their work of providing professional services. But obviously this form is having its own advantages. So many businesses would also like to start their activities not under Partnership Act but under LLP. Example, अभी कौन सा मराठी पिक्चर आया था अपना वाल्वी, देखा क्या आपने? वाल्वी पिक्चर का नाम जब आता है ना ऊपर, तो किसने बनाया करके, तो वो सो एंड सो आगे लिखते हैं ब्रैकेट में LLP. पिक्चर प्रोडक्शन भी कौन कर रहा है? LLP कर रहा है. क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? I'm getting the point what I'm trying to specify. तो पिक्चर प्रोडक्शन करने का है, कोई छोटा मोटा भी एक वेंचर है, एक एक्टिविटी है, इसके लिए अपने को काम चालू करने का. तो ये काम कितना, शायद 6 महीना 8 महीना रह गया. पहले प्री प्रोडक्शन, बाद में एक्चुअल शूटिंग, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन, बाद में रिलीज, और इसका भी कुछ प्रॉफिट होगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खत्म. समझा मैं कैसे बोल रहा? लेकिन अगर प्री प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में इधर अटक गया तो लिमिटेड लायबिलिटी रखने का, अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से आने का नहीं. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज बेटर टू गो फॉर LLP. सो नंबर 1 ये बात याद रखो कि LLP भले ही उसका ओरिजिन was to solve the mystery of unlimited liability suffered by the professionals who are probably unknown to each other. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? On account of the mistakes of each other, on account of the incapacities of each other, उससे बचने के लिए हमने LLP को इंट्रोड्यूस किया रहेगा. तो भी LLP एक बार अभी चालू हो गया, तो हमने ये नहीं बोला कि it is always for professionals. It can be for any activity. Maybe it can be for any activity that means there is a chance that people would like to start their businesses also under LLP. It may be continuous businesses, it may be one-time business, it may be series of different activities like an adventure. It may be a series of different activities like a normal business, or it may be an adventure, single activity. कुछ भी हो सकता है. अभी गड़बड़ हो गई क्योंकि LLP है, उसमें अगर बिजनेस भी चालू कर सकते हो, और LLP को कंट्रोल करने के लिए LLP का एक्ट जो अलग है एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में बेसिक स्पेशल कौन सा है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट है. अब तुम LLP में बिजनेस चालू करने को जाओगे तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं हुआ. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट है नहीं. यहाँ पे तुमको बहुत सारा अलग अलग अननोन लोगों का कैपिटल वैसे भी मिलने वाला है नहीं, तुम्हारा खुद का ही कैपिटल तुमको इंट्रोड्यूस करने का है. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी सोच के देखो, एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का पैसा यूज करता है और अपना बिजनेस करता है, और दूसरा ऐसा बिजनेस है जहां पे जिनको बिजनेस करने का है वो अपने घर से पैसा लेके आते हैं और खुद बिजनेस करते हैं. यू टेल मी which business is having the capacity of damaging the economy more if it is run fraudulently? First one or second one? First one, because it is taking the money of others. तो डूबा तो लोगों का पैसा डूबता है. दूसरे केस में क्या होगा? डूबा तो जिनका खुद का पैसे से उनका पैसा डूबेगा. तो you tell me which particular business form should be highly regulated? Second one के first one? First one. अरे the one which can cause more damage will have to be regulated more. नहीं समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ज्यादा डैमेज कर सकता है उसको ज्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा. तुम्हारे घर में चक्कू है कि नहीं है? है कि नहीं है? चक्कू डैमेज कर सकता है क्या? कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में चक्कू है. ऐसा मार्केट में जाके लक्ष्मी रोड पे जाके तुम चक्कू लेके आ सकते हो. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? कोई पूछने वाला नहीं, अरे को चक्कू ले रहा है, किसको कुल करने जाने वाला है, कुछ नहीं, डायरेक्टली ले सकते हो. मशीन गन है क्या किसी के घर पे?
समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मशीन गन है, रिव्हॉल्वर आहे, AK-47 आहे, तोफ आहे, आमच्या घरी रणगाड आहे बाबा, तुमचं पार्किंग मध्ये ठेवलेला. असं असतं का कोणाकडे? नसतंय. बिकॉज इट इज हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी ऑफ कॉजिंग मोर डॅमेज. व्हाट इज हैविंग मोर डैमेज कैपेसिटी इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड मोर. कितना लोगों का साइकिल है घर पे? साइकिल आप चलाते रहोगे, आता रहेगा, अगर पता रहेगा. साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लगता है कि नहीं लगता है? बाइक के लिए लाइसेंस लगता है कि नहीं लगता है? क्या को लगता है? इट हैज गॉट अ कैपेसिटी ऑफ डैमेजिंग नॉट ओनली द पर्सन हु इज राइडिंग बट आल्सो अदर्स. जो दूसरे को ज्यादा डैमेज कर सकता है उसको रेगुलेट ज्यादा करना पड़ता है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब टू व्हीलर का लाइसेंस आ गया, इमीडिएटली फोर व्हीलर चलाने को मिलेगा क्या? फोर व्हीलर का अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है. क्या समस्या? सर मेरे पास फोर व्हीलर का है तो अभी मैं एरोप्लेन चला सकता हूँ. ऐसे नहीं, एरोप्लेन तो तुम जाके किसी बिल्डिंग के अंदर भी डाल सकते हो, तो गड़बड़ हो जाती है बहुत सारी. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो नहीं चलेगा. देन इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हाईली रेगुलेटेड. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जितना ज्यादा डैमेज करने का ताकत है उतना ज्यादा रेगुलेशन होता है. जितना डैमेज करने का ताकत कम है उतना रेगुलेशन कम होता है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुकाबले पब्लिक लिमिटेड कंपनी का तो बहुत सारा रेगुलेशन रहेगा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का थोड़ा कम रेगुलेशन रहेगा, लेकिन फिर भी एलएलपी के मुकाबले ज्यादा रेगुलेशन रहेगा. क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? कंपनीज एक्ट के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए पागल जैसा रेगुलेशन है. वहां पे तो अपने को पागल जैसा पैसा मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे सारा का सारा सिचुएशन अलग अलग टाइम का रिपोर्ट बनाओ, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के सबमिट करो, रिपोर्ट कैसे बनाने का, उसमें क्या क्या भरने का, कैसे भरने का सबको पता नहीं है. उधर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी लोग आते हैं. क्या समझ? उधर अपना रोजी रोटी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब तुमको सूखा रोटी खाने का रहेगा तो छोटा मोटा बिजनेस रहेगा, बड़ा पब्लिक लिमिटेड बन जाओगे तो फिर बटर वाला रोटी मिलेगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स अ सिंपल आइडिया. तो बट उधर वो इंटरव्यू में वैसे ही लेंगे, क्योंकि आपके पास उतना ताकत रहना चाहिए, आपको कंपनी लॉ समझ में आना चाहिए, आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने को आना चाहिए, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वेबसाइट का कैसे इंटरेक्ट करने का मालूम रहना चाहिए. तो योर आर्टिकलशिप टेल्स यू हाउ टू लर्न ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनीवे दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्या होगा? हाईएस्ट रेगुलेशन. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को थोड़ा कम रेगुलेशन, और एलएलपी को उससे भी कम रेगुलेशन. तो एलएलपी सपोज जब तुम तुम्हारा बिजनेस चालू करने का सोच रहे थे, बिजनेस तो वैसे भी तुमको अनलिमिटेड लाइबिलिटी के पीछे जाने का था ही नहीं, इसलिए तुमने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गए नहीं. फिर क्या करने का भैया? हमने बोला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू करते हैं, कैपिटल अपना खुद का ही रहेगा. हम लोग कुछ लोगों के ऐसे कैपिटल रेज करने वाले नहीं है, ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स भी रखने वाले नहीं है, हम लोग कम नंबर ऑफ मेंबर्स ही रखने वाले हैं. हम लोग ही काम करेंगे, कभी कभी जरूरत पड़े तो हम एक्सपर्ट को हायर करेंगे. ऐसा बेसिक अपना आइडिया था. बट वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर पार्टनरशिप बिकॉज वी डोंट वांट टू गो फॉर अनलिमिटेड लायबिलिटी. सो वी एक्सेप्टेड ऑन आवर ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग द कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, which obviously was putting us under a lot of pressure to manage some extra things. कि भैया अभी इसका रिपोर्ट बनाओ, फिर ये मिनट्स रखो, फिर तुम्हारा बोर्ड मीटिंग होना चाहिए महीने में एक बार, फिर तुम्हारा साल में एजीएम होना चाहिए. अरे यार हम 4 लोग ही है, डायरेक्टर्स है, वही शेयर होल्डर्स है. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमको सबको एक दूसरे में हम लोग व्हाट्सएप पे डिस्कशन करते हैं, किधर मिनट्स बनाते बैठने का. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी गड़बड़ हो गई ना, देयर आर डिफिकल्टीज. बट वो बोलेगा नहीं, अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके फॉर्म किया तो सब फॉलो करना पड़ेगा. फिर वो फॉलो करवा लेने का मतलब क्या करना पड़ेगा? कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा. नहीं तो कोई कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंसल्टेंट काम करता है, जैसे ऊपर 4th फ्लोर पे काम करते हैं. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उनको बोलना पड़ेगा सर आप हमारे लिए प्रोफेशनल करके काम करके दोगे क्या? तो वो आपके पास एम्प्लॉय करके काम नहीं करते, कंसल्टेंट करके आपको काम करवा के देते हैं. फिर उसका काम का चार्जेस लगेंगे, आपका खर्चा बढ़ता है. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्या को इतना झंझट करने का. बट अभी क्या करें, जब बिजनेस चालू किया तभी एलएलपी अवेलेबल नहीं था और हमको अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर जाने का नहीं था, तो हम लोग गए किधर? प्राइवेट लिमिटेड के पास. और अभी गवर्नमेंट ने नया लॉ ला गया, उसका नाम क्या रखा? एलएलपी. अरे अच्छा वाला चीज है यार, पहले मालूम रहता तो हम यहीं पे जाते थे. तो अब क्या करो? शेड्यूल 3 को देखो और कन्वर्ट कर लो. सो पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करने का कारण क्या है? यू वांट टू अवॉइड अनलिमिटेड लायबिलिटी. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का कारण क्या है? यू वांट टू अवॉइड लॉट ऑफ रेगुलेशंस. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? ओके. The fourth schedule deals with conversion of unlisted public company into LLP. Unlisted public company मतलब क्या? तू बता सकता है? वाह, थैंक यू. कितना मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस. अनलिस्टेड मतलब क्या? नॉट लिस्टेड. क्या बात, वेरी गुड. And if it is listed on non-recognized stock exchange too?
Yes. Everybody, somebody. अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नाम का चीज रहता नहीं है, ऐसा कुछ करने को अगर गवर्नमेंट उनको फटका मारे। समझ में क्या बोल रहा हूँ? हम लोग अपना एक स्टॉक एक्सचेंज चालू करेंगे, खेलेंगे वेलेंगे, दैट्स नॉट द केस, इट्स नॉट अलाउड। सो देयर इज नथिंग लाइक अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर तुम्हारा रजिस्टर्ड है फिर वगैरह करके। तो व्हेन अ कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बाय डिफॉल्ट इट इज रजिस्टर्ड विद द ROC, Registrar of Companies, but it does not mean it is automatically listed on a stock exchange। जब मैं तुमको इशू शेयर सिखा रहा था तब मैंने सिर्फ चीजें बताया हुआ था, अगर याद रहेगा तो। ऐसे सुबह का वक्त था, इसी क्लासरूम में बैठे थे, 12वीं का एग्जाम खत्म होने के बाद की बात थी, अगर याद रहेगा तो। तभी हमने सब चीजों का डिस्कशन किया हुआ है। तो भैया अगर आपका कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन आपका कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो उसके साथ आपको क्या प्रॉब्लम होगा? कैन योर शेयर्स बी फ्रीली एक्सचेंज? देखो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके दो आंसर आ सकते हैं, यस या नो। तो आधे ने बोलने का यस, आधे ने बोलने का नो, बोलने का पूरा क्लास हमेशा बराबर। कैन योर शेयर्स बी फ्रीली ट्रांसफर्ड इफ यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? यस, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मींस you can sell whenever you want without taking permission from anybody, including without taking permission from company। So तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और लिस्टेड है, तो तुम्हारे पास डबल बेनिफिट है। नंबर वन, यू आर फ्री टू ट्रांसफर, एंड नंबर टू, देयर इज अ रेडीमेड मार्केट which is regulated by the government and which is having market participants which enable you to transfer your shares very quickly। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और जब तुम्हारा लिस्टेड नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा एक सिर्फ फंक्शनलिटी कम हो गया। कौन सा फंक्शनलिटी? रेडीमेड मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो जिस तरह से लोग घर बेचते हैं, मैं इसका एग्जांपल तुमको स्पेसिफिकली दिया था, अगर याद रहेगा, nobroker.com, magicbricks.com, 99acres.com, ये क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? they are trying to create kind of stock exchange kind of thing for housing purposes, बट वहां पे भी आपको क्या दिखता है? अरे मैं किसको विश्वास कैसे रखूं कि घर उसका ही घर? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसने मुझे झूठ मूठ का डॉक्यूमेंट दिखाया तो मुझे बीच में कोई चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए, ब्रोकर जैसा, जिसको मेरा विश्वास है कि बाबा ये ब्रोकर है, मतलब अपने को टेंशन नहीं, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स को ठीक से वेरीफाई करके लेगा, मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर मी। सो इनफैक्ट इफ यू गो टू 99 acres, if you go to magicbricks.com वगैरह, many times you will find that numbers given there are again of the brokers। और आपको जितना तकलीफ है उसके मुकाबले तकलीफ तो ओनर को रहता है। किसी को भी भाड़े करू करके अंदर ले लिया, टेनेंट करके ले लिया, और बाद में जगह छोड़ते हैं तो बाद में झंझट हो जाता है। सो ही सेज दैट नहीं यार, नो ब्रोकर अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, I can advertise myself, I can go for it, but then it is very difficult for the purpose of ensuring कि सामने वाला आदमी सचमुच वेरीफाइबल है कि नहीं है। तो मुझे कोई तो बीच में चाहिए, थर्ड पार्टी चाहिए कि जिसके थ्रू आएगा तो मैं विश्वास रख सकता हूँ। Candy.com भी कैसा है? But then people don't directly trust। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो the point which I wanted to emphasize is very simple। अगर आपका कंपनी सपोज, सुनिए शादी.com बोला तो पूरा सबका चेहरा ही रंग के बदल गए टपाटप। अभी छोटे हो, अभी 18 हो रहा है, पूरा घाई मत करो, और बॉयज तो बिल्कुल घाई मत करो। चलो वापस कम बैक। चलिए, ओके। सो द पॉइंट इज, रेडीमेड मार्केट तो है नहीं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा पर्सनल। तो ऐसा जो कंपनी है उसको अगर आपको एलएलपी में कन्वर्ट करने का, तो वहां पे जा सकते हो। इन अदर वर्ड्स, विच पर्टिकुलर बिजनेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन एलएलपी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ना बोला हुआ है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, यूजिंग विच शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल। बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो क्या? यस, बाय यूजिंग शेड्यूल। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को शेड्यूल 4 को यूज करके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब प्रोबेबली योर कंपनी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, although the name is not containing the words private, although you are giving free transferability, but it seems that still the capital is controlled by a closed group of people,
तो दैट केस ठीक है भैया, आपका शायद ओनरशिप मतलब आप उतना डैमेज करने वाले हो नहीं। क्या समस्या में क्या बोल रहा हूं, आपने लोगों का पैसा यूज करके बिजनेस चालू नहीं किया है, आपने अपना पैसा यूज करके बिजनेस चालू किया। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज हैपनिंग। सो इन दैट केस वी आर रेडी टू गिव यू दैट परमिशन ऑफ अगेन कन्वर्टिंग बैक इनटू एलएलपी। एक छोटा पॉइंट यहां पे रह गया, व्हाट अबाउट दोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैनॉट बी, समझा मैं क्या बोल रहा हूं यार? अरे दोस्तों बोलो, अब लिस्टिंग का मतलब क्या हो गया? यू आर सेइंग दैट इसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो शेयर वैसे भी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, तो उसका लिस्टिंग हो ही नहीं सकता है, तो उसके बारे में कुछ बोलने का जरूरत है ही नहीं। सबको समझा क्या? अरे कुछ तो बोलो। Any difficulty? Okay, next part. The Ministry of Corporate Affairs and the Register of Companies (ROC) are entrusted with the task of administration of LLP Act of 2008. The central government has the authority to frame rules with regard to the LLP Act of 2008 and can amend them by notifications in the official gazette from time to time. दो अलग-अलग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बता दिए हैं। पहला पॉइंट कौन सा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास जाने का नहीं, भले इसका नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो भी इसका जिम्मेदारी रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास नहीं है, इसका जिम्मेदारी किसके पास है? आरओसी के पास है। क्या समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आरओसी म्हणजे काय? आरओसी म्हणजे रजिस्टर ऑफ कंपनीज, समझ का? तो भैया इसका जिम्मेदारी किसके पास है? आरओसी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको कंट्रोल करने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको कंट्रोल करेगा। उसको चालू करने के लिए कौन सा कंपनी, सॉरी कौन सा मिनिस्ट्री ने चालू करके दिया था? Ministry of Law and Justice. The Ministry of Law and Justice instituted the bill, notified the bill, but they have given the power now to administer this particular act as well as the LLPs to Ministry of Corporate Affairs. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? And next part, आरओसी को बोला हुआ है कि भाई इसको पूरा पूरा कंट्रोल करो। Second very important thing, they have told that इसका कानून है, उसको कभी अमेंड करने का जरूरत पड़ा, अमेंड कौन करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करने वाला है। इसका मतलब this is not an act which comes under the state government authority. It is not an act which can be amended by state government. There is no Maharashtra LLP Act and Gujarat LLP Act. क्या समझ सकते मैं क्या म्हणतो ते? It's all over India, one single thing, LLP Act. Is it clear to all of you? Okay. Next part. It is also to be noted that the Indian Partnership Act of 1932 is not applicable to LLP. तो अगर आप LLP से रजिस्टर्ड हो तो इन दैट केस आपको 1932 का एक्ट एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, द नीड टू ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP. द लॉ मेकर्स, अभी ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ चीज था, अगर याद रहेगा तो फटाफट से पढ़ रहा हूँ, अभी ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं मेरे पास। द लॉ मेकर्स envisages the need for bringing out a new legislation for creation of LLP to meet the contemporary growth of Indian economy. A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand. In order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative or efficient manner, the LLP Act of 2008 was enacted. Thus, LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. मैंने क्या बोला था? क्रीचर शब्द यूज किया था मैंने, बीस्ट शब्द यूज किया था मैंने, उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया हुआ है? व्हीकल। क्रीचर, बीस्ट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पर एग्जाम में लिखने के लिए व्हीकल यूज कर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या व्हीकल कैसे रह सकता है? 2 चाकी गाडी असू शकते, 3 चाकी रिक्षा असू शकते, 4 चाकी ट्रक असू शकतो, 4 चाकी बस असू शकते। समस्या मी काय म्हणतो ते? आणि मग जरा का जास्त हेवी गुड्स असेल तर मग ते दिसायला 4 असतात पण ते 6 असतात, कारण मागची चाकं डबल असतात। काय समजतं की मी काय म्हणतो ते? आणि मग मोठं ते ट्रॉलर असू शकतो, त्याला भरपूर चाकं असतील, 2 मागे मागे। व्हॉट आयडिया व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से? नाही तर रेल्वे गाडी असू शकते, चाकं काय भरपूर चाकं, प्रत्येक डब्याखाली 2 3 चाकं। व्हॉट आयडिया व्हॉट आय एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो ये कौन सा टाइप का व्हीकल है, ये अपने को समझने का। सो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ व्हीकल। LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle. It provides the benefits of LLP, sorry, limited liability, but allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical discipline to form commercially efficient vehicles suited to their requirements, owing to flexibility in its structure and operation. The LLP is suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. कोई वेंचर कैपिटलिस्ट रहेगा, शार्क टैंक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं?
लोगों को कैसे पैसा लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग एक छोटा बिजनेस चालू करेंगे जो लोगों के ऐसे पैसा जमा करेगा और बाद में अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो ये हमारा जो बिजनेस है वो कौन सा टाइप का रहेगा? एलएलपी रहेगा। The LLP meaning and concept. LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that, देखो दूसरी बार corporate business vehicle शब्द आया हुआ है, तो whenever you are writing a short note of LLP, don't forget to use this particular word because institute likes this word. उनको अच्छा लग रहा है, देखो मैंने एक नया शब्द यूज किया करके, तो इंस्टीट्यूट को गुस्सा करने को देने का नहीं, उसको बोलने का आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे मार्क्स देने का, बस काम खत्म हो गया। With limited liability, it is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but allows the partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. Now, this is a very important point I have mentioned. Yeah, at the same time, limited liability there. Compliance cost कम करके दे रहे हो, लेकिन तुमको क्या दिया? फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा दिया है? Organizing their internal structure as a traditional partnership. What is the specialty of traditional partnership, internal structure and company internal structure? तुम्हारा तो कंपनी का खत्म हो गया ना पूरा पूरा, तो तुमको भी पता रहना चाहिए व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर। जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसको क्या लगता है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? बेसिकली एमओए एंड एओए लगता है ना, एक माँ लगती है और एक आ लगता है, बराबर। माँ का मतलब क्या? मेमोरेंडम, और आ का मतलब क्या? उसमें से मेमोरेंडम का पर्पस क्या है? व्हाट इज द मकसद, व्हाट इज द पर्पस? नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। It is actually speaking company's backbone. It tells what a company started for. It is a basic characteristic of company. It is a basic characteristic of company. वो बता दे कि वो कंपनी कैसे काम करने वाली है, कंपनी क्या है। It is a basic charter of company. ऐसा शब्द यूज किया रहेगा शायद तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, बेसिक चार्टर। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों चाहिए फिर? और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी खुद ड्राफ्ट करती है कि कुछ मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अवेलेबल है? जैसा तुमको टेबल F4 नहीं बोला क्या सर ने? मतलब मुझे पता है तुम्हारे स्टडी मॉडल में है कि नहीं करके अभी तक, तो टेबल F4 क्या रहता है वो सब चीजें? इट इज मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपको चाहिए तो भैया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज रहती है। मेमोरेंडम में सिर्फ 6 क्लॉजेस है, देयर इज नो ज्यादा झंझट। उससे सबसे ज्यादा झंझट किसका रहता है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज का झंझट रहता है, बाकी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है उसमें। ऑब्जेक्ट क्लॉज में तुमको मेन क्लॉज, इंसिडेंटल क्लॉज एंड एंसिलरी क्लॉज, ऐसा 3 अलग अलग क्लॉजेस डाल पाते हैं। मतलब मेन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट, ये 3 ही बताने का रहता है। उसमें तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा कि भैया बाद में कंपनी को अल्ट्रावायरस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कौन सा पॉइंट्स को कवर करने का, दैट इज व्हाट इज नेसेसरी। बट बाद में क्या, नेम जो मेन है तुम्हारा, नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, एंड बाद में तुम्हारा लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में there is a particular concept which probably must have been taught to you, that is called as doctrine of indoor management and doctrine of constructive notice। तो समझे क्या आपको? क्या रहेगा? तो तुम्हारा इंडोर मैनेजमेंट कैसे चलेगा इसके बारे में बात चालू है। एंड इट इज अज्यूम दैट द थर्ड पार्टीज आर ऑलवेज गोइंग टू अज्यूम दैट तुम्हारा इंडोर मैनेजमेंट बराबर से पूरा किया है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर चीज है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑथोराइज करने का रहेगा तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन चाहिए। किसी सिंगल डायरेक्टर ने डायरेक्टली डिसीजन लिया तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ रहेगा। और आप मुझे ऑर्डर दे रहे किसी ने काम करके दो, तो मैं अज्यूम करूंगा कि भाई आपका इंडोर मैनेजमेंट पूरा हो चुका है। मतलब तुम्हारा इंडोर मैनेजमेंट का लॉजिक क्या क्या है? तुम्हारा मीटिंग महीने में एक बार होना चाहिए कि 15 दिन में एक बार होना चाहिए? मीटिंग का कोरम क्या रहना चाहिए? मीटिंग को नोटिस कितना दिन पहले देना चाहिए? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इंटरेस्टेड डायरेक्टर रहेगा तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? मिनट्स कैसे लिखना चाहिए? अपना मिनट्स कहाँ पर रखना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना चाहिए? ये जो दुनिया भर का अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स है। एजीएम कब होना चाहिए? एजीएम का कोरम क्या रहना चाहिए? एजीएम के लिए तुम कितना दिन पहले का नोटिस भेजने वाले हो? हर छोटा चीज के लिए डायरेक्टर्स का आपस का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या रहेगा वो करके उसको तुमको डिजाइन करना पड़ता है। इट्स अ बिग वर्क, इट्स नॉट अ स्मॉल वर्क, इट्स अ बिग वर्क। तो कंपनी बोलेगी लेकिन सर जनरली ये तो सेम टू सेम रहने वाला है ना, ऐसा कुछ बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, तो आप हमको कुछ मॉडल बना के दे सकते हो क्या? तो कंपनी साइड में खुद मॉडल दिया हुआ है, टेबल है फॉर अगर अलग अलग टाइप का है कि ये टाइप का कंपनी को क्या, वो टाइप का कंपनी को क्या, वो टाइप का कंपनी को, ऐसा अलग अलग टेबल दिया हुआ है। तो कंपनी कैन डायरेक्टली से अच्छा ठीक है, हम लोग के टेबल आपको पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब मेमोरेंडम हमने डिजाइन किया और आर्टिकल्स हमने कंपनी एक्ट में दिया हुआ डायरेक्टली अडॉप्ट किया।
नहीं तो आर्टिकल जो कंपनी एक्ट में दिया हुआ है वो सारा का सारा अडॉप्ट नहीं करता है, उसके अंदर के 3-4 क्लॉजेस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। उन्होंने बोला कि 21 डेज का नोटिस, हम बोलते हैं हमको 25 डेज का नोटिस चाहिए, चलो ठीक है। देन यू हैव टू मेंशन दैट वी आर अडॉप्टिंग टेबल एफ विद मॉडिफिकेशंस इन दीस डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस। तो इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉइंट दिस पॉइंट शुड बी इंसर्टेड, ऐसा करके तुम रजिस्टर को बोलते रहते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाटएवर द केस है, एमए तो तुमको ड्राफ्ट करना है खुद को ही, एंड एमए के अंदर तुम्हारा इंटरनल रिलेशनशिप्स, आपस का रिलेशनशिप वो डिजाइन है नहीं उसके अंदर। और वो जो इंटरनल रिलेशनशिप का बात चल रहा है दैट इज इन ए, एंड ए के बारे में क्या बात होता है, इट इज ऑलवेज गिवन बाय द लॉ। वो मॉडल है तुम्हारा, उसको तुम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तुमको खुद को पूरा बनाने का तो बना सकते हो, दैट्स द डिफरेंस। बट वी आर ऑलरेडी गिविंग यू द मॉडल आल्सो। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो मॉडल। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हारा एग्रीमेंट क्या कर रहेगा क्या नहीं कर रहेगा। हम बोल के रखेंगे एग्रीमेंट एब्सेंट रहेगा तो ये यूज होगा, बट तुमको अडॉप्ट करने का जरूरत रहता नहीं कि हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को अडॉप्ट करते हैं, नहीं, बाय डिफॉल्ट इट इज देयर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कंपनी देयर इज अ रिजिड इंटरनल स्ट्रक्चर। You cannot change the basic rights which are available under the model which is given by Companies Act. You can extend those rights, but you can't reduce them. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? वैसा पार्टनरशिप में रहता नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो पार्टनरशिप में, बिकॉज पार्टनरशिप का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इट इज अ रिलेशनशिप आउट ऑफ एग्रीमेंट। तो वो जो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आपस के रिलेशनशिप को तुम लोग तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा खेल सकते हो, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू होने वाला है। जो तुमको पार्टनरशिप में मिलता था फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है, लेकिन ऊपर से तुमको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलने वाला है। सो दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर आगे क्या बोलते हैं? LLP as a separate legal entity and a business organization is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of company and flexibility of a partnership. Since LLP contains elements of both corporate structure as well as a partnership form structure, LLP is called as hybrid between the company and partnership. It's a hybrid between company and partnership. तो घोड़ा है कि गधा है? बोलेंगे नहीं, मिक्सचर है, खच्चर है। देखो भैया LLP ऊपर क्या लिखा हमने, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। बाद में बोला अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। देखो फिर से बार अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल करके शब्द आ गया, मिला क्या आपको सबको? नेक्स्ट बात में कौन है? अलाउज द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब एग्रीमेंट इज सुप्रीम, एग्रीमेंट इज सुप्रीम। क्या समझ सकते हैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज दे आर टेलिंग यू दैट इट अलाउज द पार्टनर्स टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। बाद में LLP itself will be liable for the full extent of its own assets. उनका पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करने का नहीं है, जितने LLP के एसेट्स रहेंगे उतना ही, बाद में कुछ नहीं। एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी ऑटोमेटिकली लिमिटेड। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ LLP। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है? अभी डेफिनेशंस, इसके पहले देखो हमने पार्टनरशिप ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं सीखा था। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में भी आपको ज्यादा डेफिनेशन नहीं आ रहेंगे, थोड़ा बहुत डेफिनेशन रहेंगे। ऑफर का मतलब क्या, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, कंसेंट का मतलब क्या वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे डेफिनेशन आ रहे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन D, section 2 subsection D, it means a company as defined in section 3 of the Companies Act 1956, now Companies Act of 2013, and includes, देखो भैया क्या हुआ मालूम है क्या? ये LLP का एक्ट जो है वो कब पास किया गया बताओ जरा? 2000, उसका नाम 2008 है। 7 में it was notified, passed in December 2019 and notified मतलब assented by president in 2009। तो गड़बड़ किधर है मालूम है क्या? कि जब ये तुम्हारा LLP का एक्ट बन रहा था तब कंपनीज एक्ट 1956 वाला चालू था, कंपनीज एक्ट 1956 वाला चालू था, इसलिए उन्होंने बोल के रखा इट मींस द कंपनी हैज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन बाद में क्या हो गया, 2013 में कंपनीज एक्ट ही चेंज हो गया। तो आप कौन सा कंपनीज एक्ट देखने का, 1956 वाला देखने का कि 2013 वाला? बोलते हैं अभी 2013 वाला देख। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड इंक्लूड्स, शायद तुमको ये प्रसाद सर ने सिखाया रहेगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि फाउंडेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं, इसके लिए शायद बताया भी नहीं रहेगा, मुझे पता नहीं क्या है। बट डेफिनेशंस आर ऑफ 2 टाइप, एक को बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक को बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। एक को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन।
अगले साल मैं जब उनको इनकम टैक्स सिखाऊंगा, अगले साल मतलब अभी इसी साल 19 जुलाई के बाद, तब मेरा पहला लेक्चर में ये सब चीजें चलने वाला है कि इंक्लूसिव मतलब क्या, एग्जॉस्टिव मतलब क्या करें। इंक्लूसिव का मतलब जहां पे डेफिनेशन देने के टाइम वो लोग आपको एग्जांपल्स देते हैं, किसी भी चीज का मतलब बताने के लिए मतलब नहीं बताते, बल्कि उस चीज के अंदर क्या क्या आ सकेगा उसके एग्जांपल्स देते हैं, तो उसको बोलने का इंक्लूसिव। किसी भी चीज को अगर मुझे डिफाइन करने का है कि ये चीज का मतलब क्या है, तो मतलब बताने के लिए अगर मैं उसके अंदर का तुमको अलग अलग एग्जांपल्स देते जाऊंगा, तो समझ जाना कि मैंने इंक्लूसिव डेफिनेशन यूज किया है। तो किसी ने मुझे बोला सर, मैंने बोला तुम लोगों को चलो जब फाउंडेशन का तुम्हारा रिजल्ट लगेगा, फाउंडेशन का जब रिजल्ट लगेगा तो मिठाई लेके आना। तो बोला सर ठीक है, बट डिफाइन मिठाई, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो मैं बोला मिठाई मतलब, अरे इसके नाम में मिठाई है, तो जो मीठा रहता है वो मिठाई। तो बोला ठीक है सर, फिर तुमको मस्त से रैंक मिला, तुम एप्पल लेके आए। बोला सर एप्पल मीठा रहता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सर मिठाई हो गई वो। कोई गन्ने का जूस लेके आया, बोलता सर मैं रैंक लिया गया, गन्ने का जूस ले लो, सबको गन्ने का जूस बांट रहा हूँ, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर क्योंकि आपने बोला मिठाई का डेफिनेशन क्या है, मिठाई मतलब जो मीठा रहता है वो, तो गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस मीठा है, लेके मत आना गाँव के लोग। तो अभी प्लानिंग, अरे तू लेके आएगा कि मैं लेके आऊंगा घर पे, चलो ठीक है भाई इकड़े आ, चलो। तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मिठाई को कैसे डिफाइन करो, देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मैं बोलूंगा नहीं नहीं मिठाई का मतलब क्या है, फिर मिठाई का मतलब होता है समथिंग विच इज मेड ऑफ आइदर शुगर और जैगरी। तो जैगरी ओके सर, फिर मैं आपको चिक्की लेके आता हूँ, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इन दैट केस। सो मैं बोलूंगा नहीं, फिर मिठाई का मतलब क्या है, देन आई विल ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ मिठाई। मैं बोलूंगा पेड़ा और बर्फी और ये और वो, ऐसा करके करके करते जाऊंगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो फिर वो जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उसको देखते हुए तुमको समझेगा कि बाबा सर मिठाई का मतलब क्या देने का कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। फिर उसके अंदर तुम बोलोगे सर आपने पेड़ा बोला था, आपने बर्फी बोला था, आपने काजू कतली बोला था, मैं रसगुल्ला लेके आया। मैं बोलूंगा देख यार एग्जांपल्स देख, एग्जांपल में किधर साथ में रस रहता है क्या, नहीं ना, तो रस वाला नहीं लेके आएगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। Are you getting the point? So inclusive definition are those definitions where the meaning is not told, but examples are given. Based on that, you can draw your own conclusions. What must be included? क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। And certain definitions. तो अभी इसका मतलब क्या होगा ये भी याद रखने का कि inclusive definitions are always having open-ended meanings. They are wide definitions. क्योंकि वहां पे the author of the definition has not restricted your right of interpretation to the words which he has used in the definition. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो तुम बोलोगे सर मैं मिठाई की दुकान में गया, वहां पे आपने जो बोला था वैसा एक मस्त से मावे का एप्पल का शेप में बनाया हुआ पेड़ा था, उसके ऊपर लौंग लगा के रखा हुआ था, और साइड में उन्होंने ऐसा मस्त से कलर किया था, उसका ऐसा वो छोटा सा पत्ता वत्ता लगा के दिखाया था। तो मुझे अच्छा लगा सर, मुझे आपको देने का मन किया। बोला अच्छी बात, लेकिन आपने सर डेफिनेशन में उसका नाम लिखा नहीं था, मावे का एप्पल, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहा मैं बोलूंगा नहीं तो देखना बाबा पेड़ा बोला है ना तो चलता है, मतलब उसके अंदर ये सब, दिस इज बेसिकली पेड़ा होगा, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन स्किल्स आर टेस्टेड, यू कैन अप्लाई योर ओन माइंड, you can look at the situation and you can decide can something new which was not in existence when the definition was made, but does it fulfill the basic characteristics which are fulfilled by other things which are included in definition। अगर हाँ तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव डेफिनेशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। और दूसरा कौन सा रहता है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जहां पे द ऑथर ऑफ द डेफिनेशन डज नॉट वांट द यूजर ऑफ डेफिनेशन to use his own intelligence to apply any new meaning to the words, then he will give exhaustive definition. So the meaning of the words is exhausted the moment the words are over. वो शब्दों के आगे जाना अलाउड नहीं, that's what is called as exhaustive definition. सर हमको कैसे समझेगा डेफिनेशन इंक्लूसिव है कि एग्जॉस्टिव है। Be with me. अगर किसी भी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड्स ऐसा शब्द आया रहेगा तो समझ जाने का इंक्लूसिव, और अगर किसी भी डेफिनेशन के अंदर वर्ड आया रहेगा मीन्स तो समझ जाने का इट इज एग्जॉस्टिव। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन सर किसी डेफिनेशन के अंदर मीन्स भी आया रहेगा और इंक्लूड्स भी आया रहेगा, तो फिर सर हम लोग अपना 11वीं 12वीं का ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक यूज रखेंगे। सैलरीज एंड वेजेस बोला रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, और वेजेस एंड सैलरी बोला रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब अगर पहले मीन्स बोला रहेगा तो एग्जॉस्टिव और पहले इंक्लूड बोला रहेगा तो इंक्लूसिव, ऐसा करने का नहीं। वो 11वीं 12वीं का तुम्हारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अपने को लॉ का पढ़ाई करने का है, लेकिन इसको क्या कंसिडर करने का अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आप जब अपना इंटरमीडिएट के आओगे तब डिस्कस करोगे। अभी सिर्फ याद रखो कि ऐसा भी कुछ रहता है, इस डेफिनेशन में वैसे ही हो चुका है।
शुरुआत देखोगे तो क्या बोलता है, इट मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स सपोर्ट देगा रे, इट मीन्स म्हटले की नाही, इट मीन्स म्हटले, इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 नाउ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स भी आ गया, इंक्लूड्स भी आ गया, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में वो क्लासिफिकेशन करने का झंझट है नहीं। वैसे तुमको अभी थोड़ा सा ग्लिम्स देके रखा है, ट्रेलर बता के रखा है कि अगला पिक्चर कौन सा रहने वाला है पार्ट 2 में। अभी बाहुबली पार्ट 1 चालू है, बाद में पार्ट 2 आएगा। ओके, तो तभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करें। ओके, तो एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, LLP incorporated outside India, company incorporated outside India, but does not include a corporation sole or a cooperative society registered under any law from the timing in force, for the timing in force, and any other body corporate, not being a company as defined in section 3 of the Companies Act 1956, or a limited liability partnership as defined under this act, which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. मेरे कर सका ना? हेलो, अरे कुछ तो बोलो, देखो भैया फटाफट से उन्होंने क्या क्या बोलकर रखा है। पहला पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? तो बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में देने वाले हैं। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के तहत कंपनी करके डिफाइन किया हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट एलएलपी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के हिसाब से जो कंपनी है वो एलएलपी एक्ट के सेक्शन 2D के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? आर गेटिंग द पॉइंट? आई एम रिपीटिंग अगेन। तो मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, मैं बोलूंगा उसके लिए क्या करो, कंपनीज एक्ट के पास जाओ, और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर जिसको कंपनी करके डिफाइन किया हुआ है वो मेरे लिए क्या बन गया, बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। मतलब मैं फिर से अलग से डेफिनेशन देने बैठने वाला नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन इंक्लूड है, वहां का सेक्शन 3 के अंदर इंक्लूडेड सारे के सारे लोग यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आ चुके हैं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो, एनी डिफिकल्टी? फिर आगे क्या बोलते हैं, एंड इंक्लूड्स, उसके अलावा और भी कोई लोग हैं जो शायद वो सेक्शन 3 के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहे, लेकिन हमको उनको पकड़ने का है। जो शायद वो सेक्शन 3 के अंदर नहीं रहेंगे लेकिन मुझे यहाँ पे पकड़ने का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मधुरा मैडम के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑफ मधुरा मैडम, हु आर ऑफ मिलिंद सर। मैं बोलूंगा एंड आल्सो इंक्लूड्स स्टूडेंट्स ऑफ मिलिंद सर। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो वैसे लॉजिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला, मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ढूंढने का है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, मेरे सेक्शन 2D के पास जाना पड़ेगा। मेरा सेक्शन 2D आपको क्या बोल रहा है कि सेक्शन 3 के पास जाओ। किसके सेक्शन 3 के पास जाओ, कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 के पास जाओ। उधर जिसको जिसको कंपनी बोला हुआ है ना वो मेरे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है ही, और उधर जिसको कंपनी बोला हुआ नहीं है उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलने का मेरा हक बंद नहीं हुआ है, क्योंकि मैं और भी डेफिनेशन दे सकता हूँ। डेफिनेशन में बोलता हूँ और उसके अलावा वो तो पकड़ लिए, और बाकी के लोगों को पकड़ो। किसको किसको पकड़ो, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सो अभी किसी ने इसी कानून के तहत एलएलपी रजिस्टर किया हुआ रहेगा तो एलएलपी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट मानने को तैयार है। एलएलपी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट मानने को तैयार। अगर याद रहेगा तो इसके पहले भी बार बार इंस्टीट्यूट ने कौन सा वर्ड यूज किया था, अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। याद है क्या आपको सबको? तो एलएलपी को एलएलपी एक्ट खुद ही कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर करता है। सेकंड पॉइंट और कौन सा है, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर, मतलब शायद वो 2008 वाले एलएलपी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर हुआ नहीं रहेगा, वो शायद अमेरिका में रजिस्टर हुआ रहेगा, वो शायद यूके में रजिस्टर हुआ रहेगा, वो शायद किसी और जगह पे रजिस्टर हुआ रहेगा। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? जहां पे भी रजिस्टर हुआ रहेगा, भारत के बाहर है ना, तो सर उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलने का कि नहीं बोलने का? यस। पहला पॉइंट कौन, जो इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है वो इंडिया के एलएलपी के एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, जो इंडिया के एलएलपी एक्ट के हिसाब से एलएलपी है वो इंडिया के एलएलपी एक्ट के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट भी है। क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? तीसरा, जो इंडिया के बाहर के किसी एलएलपी एक्ट के हिसाब से एलएलपी है वो इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? इंडिया में एलएलपी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। एंड लास्ट पार्ट, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसा कोई कंपनी है जो 1956 के कानून के तहत रजिस्टर नहीं हुआ था और जो 2013 के कानून के हिसाब से रजिस्टर नहीं हुआ था, वो शायद किधर यूके में रजिस्टर हुआ रहेगा, यूएसए में रजिस्टर हुआ रहेगा, और किधर दुबई में रजिस्टर हुआ रहेगा, सिंगापुर में रजिस्टर हुआ रहेगा, हमको पता नहीं, किसी और जगह में रजिस्टर हो गया उस कानून के, उस देश के कंपनी एक्ट के तहत, तो भी उसको इंडिया में क्या कंसिडर करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी इट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका क्या फायदा होगा आगे चल के समझे।
कि एलएलपी के पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं, उसमें इसका अपने फर्क पड़ने वाला है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, चलो बताओ फटाफट से बताओ। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कौन से सेक्शन ने दिया हुआ है रे? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। ब्रैकेट के अंदर डी डाला मतलब वो सबसेक्शन है। ये मेरे ख्याल से तुमको सर ने बताया रहेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया रहेगा 2 और विदाउट ब्रैकेट डी, तो वो सेक्शन 2 डी है, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी नहीं है। ब्रैकेट आया मतलब समझ जाने का कि तुम एक लेवल नीचे उतर गए। क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? अगर उन्होंने ऐसा किया रहेगा सेक्शन 2 डी और ब्रैकेट खत्म कंप्लीट करने के बाद में 2 के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर डी, ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद और एक ब्रैकेट में 1, तो समझ जाने का सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्लॉज 1, एक लेवल नीचे उतर है बोलने के लिए क्या करने का, नया ब्रैकेट डालने। समझ में क्या बोल रहा हूँ? गॉट आइडिया? एनी डिफिकल्टी? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी किसकी बात करता है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, जो इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत, इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के तहत कंपनी है, वो एलएलपी एक्ट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट। इसके अलावा जो एलएलपी एक्ट के तहत एलएलपी है, वो एलएलपी एक्ट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट भी है। नेक्स्ट, जो इंडिया के बाहर के किसी कानून के तहत एलएलपी बन चुका है, वो इंडिया के एलएलपी एक्ट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट है। और लास्ट वन, जो इंडिया के बाहर के किसी कानून के तहत कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो इंडिया के लिए फिर से एक बार इंडियन एलएलपी के लिए क्या हो जाएगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट सोल। अभी कॉर्पोरेट सोल का कंसेप्ट आज डिस्कस नहीं करता हूं, कल डिस्कस करूंगा, थोड़ा ज्यादा डिस्कस करने का उसके लिए। तो एक कॉर्पोरेट सोल को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट में कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर करने वाले नहीं। Next one, any other body corporate which the central government made by notification in the official gazette specify in this behalf। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के बोला रहेगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, बाकी सब कानून में, शायद इनकम टैक्स एक्ट में, शायद जीएसटी में, शायद किसी और कानून में इसको बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया हुआ है, इसकी वजह से कोई दिमाग चला के बोल सकता है कि सर उसी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स के तहत बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया, जीएसटी के तहत बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया, तो एलएलपी के लिए भी उसको बॉडी कॉर्पोरेट समझ ही लो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसको एलएलपी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका जो ऑफिशियल गैजेट निकलता है उसके अंदर नोटिफिकेशन डाल के रखेगा कि दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एलएलपी, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला रहे आपका स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भले ही ये बाकी सब कानून के लिए बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा, तो भी एलएलपी के लिए इसको बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट मत कीजिएगा। अगर ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला रहेगा तो इन दैट केस वो वाला चीज बाकी सब कानून के लिए बॉडी कॉर्पोरेट होने के बावजूद एलएलपी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। सब चीजों को उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। ट्रेड मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेड। प्रोफेशन मतलब क्या? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज? व्हाट आई एम डूइंग जस्ट नाउ, मैं जो क्लास में कर रहा हूँ ये मेरा प्रोफेशन है कि प्रोफेशन नहीं है? I'm a चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोले मेरा प्रोफेशन है कि नहीं है? नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा बिजनेस है। किधर भी ऐसा कुछ रूल है क्या तुमको खुद का क्लास चालू करना करेगा, तुमको क्लास में सिखाने का तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, ऐसा कुछ कंपल्सन है क्या? मेरे जगह पे दूसरा कोई प्रोफेसर आएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहेगा, लेकिन लो अच्छे से सिखाता रहेगा, अकाउंट्स अच्छे से सिखाता रहेगा, तुमको सारा का सारा समझता रहेगा, सिलेबस टाइम पे पूरा करके देता रहेगा, इंस्टीट्यूट का स्टेटमेंट सॉल्व करके लेता रहेगा, बाकी सब अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करके लेता रहेगा। तुम ऐसा बोलोगे कि जब तक सीए नहीं आएगा तब तक नहीं सीखूंगा करके? वो तो तुमको 10 एग्जाम्पल लेने को तैयार है, सब तुम बोलोगे अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को सीखने से प्यार है। क्या समझ में कैसे बोलो, टाइम पे सिलेबस पूरा हो रहा है, काम खत्म हो गया। जब तक नहीं समझाएगा तब तक डबल सिखा रहा है, ट्रिपल सिखा रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छा एग्जाम्पल देके सिखा रहा है, अच्छी बात है, अपने को क्या फर्क पड़ता है उसके लिए? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सपोज एम्बिशन कॉमर्स इंस्टीट्यूट का जो शेयर होल्डर्स है वो सब लोग डॉक्टर लोग हैं, तो अब ऐसा बोल गए अरे डॉक्टर लोगों ने कॉमर्स का क्लास कैसे चालू किया? उन्होंने बोला नहीं, हमने क्लास चालू किया हुआ है, पर ने कौशल सर आनंद सर को बोला है कि आप लोग सीईओ बन जाओ और कर दो काम इसको, हम कर रहे हैं, हो सकता है ना? समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ये बिजनेस है बाबा लोग। प्रोफेशन मतलब क्या? प्रोफेशन मतलब जो चीज करने के लिए तुम्हारे पास स्पेशल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन तुमको पढ़ाई करके हार्डवर्क करके लेना पड़ता है, और अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तुमको करने को मिलता नहीं है,
In that case, it will be called as a profession. So, chartered accountant ने किया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशन. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लास में सिखाया था वो प्रोफेशन नहीं है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्रामा में काम करेगा, गाना वाना गा के दिखाएगा, क्रिकेट खेलेगा, पिक्चर का डायरेक्शन करेगा, है ना? शेखर कपूर मिस्टर इंडिया कल हमने बात किया था, अगर याद रहेगा तो. मिस्टर इंडिया का डायरेक्टर कौन है? शेखर कपूर है. समझे क्या? फिर वो अपना हरीश साल्वे जो लॉयर है ना, बड़े वाले लॉयर है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पहले. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो पिक्चर का डायरेक्शन करेगा तो इट इज नॉट अ प्रोफेशन. चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम किया तो वो प्रोफेशन है. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करेगा अपना प्रोफेशन नहीं बनेगा. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? जिसको हाथ लगेगा प्रोफेशन बन जाएगा. उसका कुछ मेडास टेस्ट नहीं है. प्रोफेशन बनने के लिए जरूरी क्या है? वो चीज करने का तो तुम्हारे पास स्पेशल क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशन. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट. और क्या बोला है? सर्विस. इट कैन बी एनी सर्विस. फिर एसी सर्विस करके देता है, एनी टाइप ऑफ सर्विस. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एसी सर्विसिंग करके देगा, कंप्यूटर का एएमसी लेगा, एसी का एएमसी लेगा, नहीं तो क्या स्वीपिंग करके देगा, झाड़ू करके देगा, सब क्लीनिंग विनिंग करके देगा, नहीं तो क्या गाड़ी रिपेयर करके देगा. एनीथिंग इज ओके फॉर अस. ओके. और क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. गाना वाना गाता है, डांस वांस करता है, एक्टिंग करता है. दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये सब चीजों को हम क्या कंसीडर करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी दे आर ट्रीटेड एज बिजनेस. तो एलएलपी कैन बी स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी आइदर ट्रेड और प्रोफेशन और सर्विस और ऑक्यूपेशन. किसी भी चीज के लिए आपने एलएलपी चालू किया तो भी हमको चलने वाला है. नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा? डेजिग्नेटेड पार्टनर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ. डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन 7. सेक्शन 7 ने एक कंडीशन डाला हुआ है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर का दर्जा देना पड़ेगा. मतलब वो पार्टनर दो अलग अलग रोल में काम करेगा. नंबर 1 ही विल बी अ पार्टनर एंड नंबर 2 ही विल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो अगर हम लोग 4 लोग हैं तो एलएलपी के एक्ट के हिसाब से वहां पे 5 लोग दिखते हैं. एक कौन? ए बी सी डी. और बाद में कौन? ए हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. मतलब ए इज काउंटेड ट्वाइस. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? ए इज काउंटेड ट्वाइस. ए एज ए एंड ए एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस अब एनी पार्टनर. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि इट शुड बी फर्स्ट पार्टनर. एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज पर्सुएंट टू डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन 7. सेक्शन 7 ने जो जरूरत बोल के रखी है उसके हिसाब से जिस पार्टनर को उस एलएलपी ने डेजिग्नेट किया, बोला कि ये हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो ठीक है, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एंटिटी. एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. तो बेसिकली एंटिटी का मतलब क्या है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज बाय डिफॉल्ट एंटिटी. और पूरे एलएलपी एक्ट के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनाया हुआ पार्टनरशिप इज नॉट एंटिटी. लेकिन एलएलपी एक्ट के अंदर के सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 एंड 53 इनके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनाया हुआ पार्टनरशिप भी एंटिटी है. But I'm repeating again. Any body corporate is always entity for the purpose of LLP. For all sections of LLP, body corporate is always entity. For all sections of LLP, Indian Partnership Act के तहत बना हुआ partnership is not an entity. But for sections 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 and 53, body corporate तो entity है ही. उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट के तहत बना हुआ पार्टनरशिप भी एंटिटी. सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा? फाइनेंशियल ईयर. फट से पूरा कर लेता हूँ, बाद में आगे जाएंगे फिर हम लोग. फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस अ पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द ईयर टू द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. या वर्षीच्या 1 एप्रिल पासून पुढच्या वर्षीच्या 31 मार्च पर्यंतचा पिरियड म्हणजे काय आहे? फायनान्शियल ईयर आहे. However, in case of LLP incorporated after 30th day of September of a year, the financial year may end on 31st March of the year next following that year. अशी LLP आहे की जी या वर्षी इनकॉर्पोरेट केली गेली. पण ती कधी इनकॉर्पोरेट केली आहे? इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन एनी डे आफ्टर 30th September of a year. म्हणजे ती 1st ऑक्टोबरला इनकॉर्पोरेट केली असेल किंवा 1st डिसेंबरला इनकॉर्पोरेट केली असेल किंवा 1st जानेवारीला इनकॉर्पोरेट केली असेल, तर इन दॅट केस then its financial year maybe Paolo will be named. Maybe from what? From 15th of October 2017 to 31st of March. Maybe on 31st of day
31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, मतलब वो साल खत्म होने के बाद का जो अगला 31st मार्च रहेगा तब तक का काउंट करेंगे. एग्जाम्पल दिया देखो, इफ एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th of October 17, then its financial year may be from 15th of October 17 to 31st March 18 नाही 31st March 19. म्हणजे त्यांचं पहिलं फायनान्शियल इयर जे आहे ना, इट मे बी मोर दॅन 12 months. फक्त पहिलं, दरवर्षी नाही, फक्त पहिलं. फर्स्ट फायनान्शियल इयर कॅन बी मोर दॅन 12 months. सर आमची एलएलपी ना, आमची समजा 29 सप्टेंबरला फॉर्म केली आहे, मग रिमाइंडर मग तुमच्यासाठी परत काय करायचं, 29 सप्टेंबर अप टू 31st मार्च त्याच वर्षीचं जे असणार त्याच्यामध्ये. कारण तुमचं 30 सप्टेंबरच्या पुढे असेल तर तुम्हाला पिरियड वाढून मिळाला. समजतं मी काय म्हणतो ते? 30 सप्टेंबरच्या अलीकडे असेल तर तुम्हाला पिरियड वाढून मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलं जे एक्झाम्पल आहे त्यात त्यांनी 15th October 17 म्हटलं होतं, तर आपण त्याला काय म्हटलं, 15th October 17 टू 31st March 19 म्हटलं होतं. आता त्याच ठिकाणी समजा का थोडंसं चेंज करतो मी आणि तिकडे म्हणतो 15th of Octoberच्या ठिकाणी 15th of September पकडा, तर मग ते काय होईल, 15 September 17 टू 31st March 18, मग 19 पर्यंत जायचं नाही. कळतं मी काय सांगितलं ते? नेक्स्ट पार्ट. The income tax department has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of the next year. In keeping with the income tax law, the financial year of LLP should always be from 1st April to 31st March each year. अभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया, मतलब इनकम टैक्स के लिए अभी ये जो तुम्हारा एग्जांपल था 15 अक्टूबर 17 से लेकर अगर उनका साल चालू होता रहेगा तो एलएलपी बोलता है कि तुमको हमने परमिशन दिया है. कहां तक परमिशन दिया हुआ है? 31st March 19 तक का परमिशन दिया हुआ है. बट इनकम टैक्स क्या बोलेगा, सॉरी तुम्हारा ईयर कब खत्म होगा, 31st March 18 को खत्म हो जाएगा. तो सर क्या फायदा होगा? तो नहीं, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा वो जो अगर कुछ बेसिक रिपोर्ट्स अंडर एलएलपी एक्ट सबमिट करने का है, इनकम टैक्स के लिए तुमको तुम्हारा 31st March 18 को खत्म किया ऐसा करके कंसिडर करना पड़ेगा. बट एलएलपी एक्ट के लिए आपको हमने टाइम दिया हुआ, तो उसके लिए अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन कंपलसरी है, जब आपका बैलेंस शीट हमारे पास सबमिट करो, समझ में कैसे बोल रहा हूँ, आपका पीएनएल अकाउंट हमारे पास सबमिट करो, तो हमने आपको परमिशन दिया, आपने 31st March 19 को साल खत्म होगा ऐसा बोल के हमको डायरेक्टली लगभग 1.5 साल का डायरेक्टली रिकॉर्ड सबमिट किया तो हमको चलेगा. वी आर नॉट गोइंग टू पुश यू. इनकम टैक्स में पुश यू, जब सामने का बोल कर रखा है मे बी, फिर तुम बोलोगे सर जाना दो ना, फिर इनकम टैक्स के लिए वैसे ही बैलेंस शीट बनाने का है, पीएनएल अकाउंट बनाने का है, तो हम लोग यहाँ पे भी एलएलपी को भी सबमिट करते, कर दो, क्योंकि हमने कुछ मस्ट भी बोला हुआ है ही नहीं, हमने तो वैसे भी मे भी बोला हुआ था. बट इफ यू वांट दैट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स टू एलएलपी और एलएलपी ROC बेसिकली, you want some more time, so we are giving you the money, no problem. Breathing time है आपके पास. इनकम टैक्स एक्ट भी ब्रीदिंग ऑन द नेक, एलएलपी एक्ट मतलब ROC भी ब्रीदिंग ऑन द नेक. कैसे नहीं, ROC बोलेगा मैं बाद में आते भी चलेगा, इनको जो देने का दे दो, मेरे लिए भाई नहीं. क्या समझ सके कैसे बोल रहा हूँ? ओके नेक्स्ट. फॉरेन एलएलपी नहीं, ठीक है रहने दो, अभी इतने काफी, उनको ब्रेक लेने का रहेगा, कल बाकी की चीज बात करेंगे.